قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے. قرآن کے بیان میں کیا آتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ فیکٹ نمبر 3 ہے. ایکسکیوز می. اگر آپ 7ویں سورت کھولیں قرآن کی، 7ویں سورت آیت نمبر 203، کوئی نشان نہیں، کوئی معجزہ نہیں. سورت 10 قرآن کی 20ویں آیت، کوئی نشان نہیں، کوئی معجزہ نہیں. سورت 13 قرآن کی آیت 7ویں اور 27ویں، کوئی نشان نہیں، کوئی معجزہ نہیں جو محمد پہ اترا ہو. پہلے بھی جو میں نے بیان کیے، کوئی نشان نہیں، کوئی معجزہ نہیں جو محمد پہ اترا ہو، اور محمد بیان کرتا جاتا ہے خود. میں نے ابھی تک آپ کو 4 ریفرنس دیے ہیں. والیوم 6 سورت 6 قرآن کی آیت نمبر 37، 57 اور 109. آیت نمبر 37، 57 اور 109. کوئی نشان نہیں، کوئی معجزہ نہیں جو محمد کے اوپر اترا ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ نے سیمسنگ کا ویڈیو کلپ دیکھا. قرآن پاک کی 7 آیات مبارکہ کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات نہیں تھے. اور جب ہم ان آیات کا جائزہ لیں گے تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اصل میں نے کئی بار جو ہے وہ اس بات پر بات کی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. بہت آسان کتاب ہے قرآن پاک، سمجھنا بہت آسان کتاب ہے. اگر آپ صرف ایک یعنی کہ بائبل میں سے صرف ایک بائبل کا عقیدہ کفارہ یا بائبل میں یسوع کا خدا ہونا یہ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا کبوتروں کے ڈربے میں گھسنا پڑے گا، وہاں سے بھی مل جائے تو مل جائے. آگ کی زبانیں وہ آپ پر نازل ہونے سے رہی، تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر قرآن پاک سمجھنا انتہائی آسان ہے. صرف ایک شرط کہ آپ حلالی ہوں، یعنی کہ اگر تو آپ حلالی ہیں، آپ یعنی کہ اسی سے پیدا ہوئے، اسی باپ سے پیدا ہوئے جس کا آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح ہے، تو پھر تو آپ قرآن پاک بآسانی سمجھ جائیں گے. اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بھی، میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کرسچن چوڑا ہے، تو اگر وہ قرآن پاک اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ صرف اپنی ماں کے کریکٹر کو دیکھ لے. سیمسن کی ماں کا تو کریکٹر دیکھنا ہی کیا ہے، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے کام ہیں، جو اس نے الزامات جس انداز میں لگائے اور جتنے اس نے جھوٹ بولے، اس سے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں جو گشتی نہیں تھی، گشت توڑ تھی. اب آتے ہیں ہم حوالہ جات کی طرف، جو اس نے حوالہ جات دیے، اور اس کے اینڈ پہ میں بتاؤں گا کہ کیا معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے اس نے جو حوالہ دیا سورہ الاعراف یعنی کہ 7ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیت ہے 203. اور اے محبوب، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی. تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے. اس سے کیا پتا چلا کہ کفار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں آپ نے خاموشی اختیار کیا ہے تو اپنے دل سے کوئی آیت بنا لو. تو یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کر رہا ہوں کہ جو میرے اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. میں اپنے دل سے نہیں بناتا، اپنے دل سے نہیں بناتا. تو ایسے کئی معاملات ایسے سامنے آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا یعنی کہ انتظار کیا. انتظار کس کا کیا؟ وحی الہی کا انتظار کیا کہ یہ کام تبھی ہوگا جب تک وحی نہ آئے گی. مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی یعنی کہ
सिमत किबला, इसके लिए भाई का इंतजार किया। अगर वो अपनी तौर पर सारा कुछ करते, यानी कि जैसे ये बकवास करते हैं कि वो कुरान पाक जी उन्होंने घड़ के बना लिया तो फलां से ये लिया फलां से, ये इनकी किस्सा गोई होती है। ये जो चूड़े हैं, होता ये है कि ये किसी अच्छे डिबेटर के सामने तो आने से रहे। मिसाल के तौर पे डिबेटर, हालांकि नकम्मा बंदा मैं इसे शुमार करता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक, इसके सामने तो ये आते नहीं है। भाई इतनी हिम्मत है ये सैमी सैमसन की, टीजी खान की, या और कोई जो नामी अपने आप को पता नहीं क्या क्या अपना आप यूट्यूब पर, डेली मोशन पर, फेसबुक पर इनकी वीडियो देखते होंगे, और क्रिश्चियन उनके लिए पता नहीं क्या क्या लकब वो उनको देते फिरते हैं। जैसे यसू को ये लकब देते हैं, इसी तरह अपने डिबेटर्स को, अपने ये चूतिया किस्म के अपना वो ये स्कॉलर्स को भी ये बड़े बड़े अलकाब देते फिरते हैं। तो इनकी जरूरत तो इतनी के नहीं है कि पीस टीवी पे चले जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक के मुकाबले चले जाएं, और किसी और के सामने, मेरे सामने आना तो ये बहुत जान जोखिम का काम है इनके लिए। फिर इसने एक और आयत मुबारका का हवाला दिया, उसको हम देखते हैं सूरह यूनुस यानी कि 10वीं सूरह मुबारका और इसकी आयत 20, और कहते हैं कि इन पर इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी। तुम फरमाओ गैर तो अल्लाह के लिए है, अब रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हूं। अब ये कुफार जो कह रहे हैं, ये वो काफर कह रहे हैं। अब जो काफर कह रहे हैं वो इनके लिए सनद है, जो काफर कह रहे हैं वो इनके लिए सनद होगी। और जो कुरान पाक, जब मैं एंड में जाऊंगा, यानी कि ये जो 7 इसने हवाले दिए हैं, जो मैं कुरान पाक से मौजज़ा साबित करूंगा, तो वहां पर इनकी माँ भाग जाएगी, बहनें भाग जाएंगी, वहां पर इनकी जो माँ बहन भाग जाएगी। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैंने इनके तमाम मामला देखे। अब मैं इस आयत मुबारका की मैं जो है तफसीर भी पढ़ देता हूँ। अहले बातिल का तरीका यह है कि जब इनके खिलाफ बुरहान कवी कायम होती है, यानी कि जिस तरह क्रिश्चियनों को हम वाज़ेह तौर पर मैं सीधा कहता हूँ, सीधी सी बात है यार, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल उठा के देख लो, क्या जरूरत है तुम्हें ये ये साबित करो वो। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल उठा के देख लो, 6-7 किताबों का फर्क तो वहां पे नजर आएगा, और जो जिस खुदा के कलाम में 6-7 किताबों का फर्क जाहिर नजर आ रहा है, और तुम्हें क्या दिखाए, और यहाँ पर तुम तावीलें करने से बाज नहीं आते। तो ये वही है कि अहले बातिल का तरीका है कि जब इनके खिलाफ बुरहान कभी कायम होती है और वह जो आपसे आजिज आ जाते हैं, तो इस बुरहान का जिक्र इस तरह छोड़ देते हैं जैसे को पेश ही नहीं। अब इनको ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल का कर लो तो ये 3 घंटे दिमाग खा जाएंगे, और कोशिश इनकी यही होगी कि इस पर बात ही ना हो। और ये कहा करते हैं कि दलील लाओ, ताकि सुनने वाले इस मुगालता में पड़ जाए कि इनके मुकाबले अब तक कोई दलील ही नहीं कायम की गई। ये चूड़ों का जिक्र हो रहा है, ये क्रिश्चियनों का वाकया है, ये क्रिश्चियन ऐसे ही करते हैं। इसी तरह कुफार ने हजूर के मौज़ात और बिलखसूस कुरान करीम जो मौज़ा अज़ीमा है, इसकी तरफ से आंखें बंद करके ये कहना शुरू किया कि कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, गोया कि मौज़ात उन्होंने देखे ही नहीं, और कुरान पाक को वो निशान ही शुमार नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि गैब तो अल्लाह के लिए है, अब रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हूँ। तकरीर जवाब यह है कि दलालते कहरा इस पर कायम है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का ज़ाहिर होना बहुत ही अजीम शान मौज़ा है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें पैदा हुए, उनके दरमियान हजूर पले बढ़े, तमाम ज़माने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकी आंखों के सामने गुजरे। वो खूब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी किताब का मुताला किया, ना किसी उस्ताद की शागिर्दी की, यकबार की कुरान करीम आप पर ज़ाहिर हुआ, और ऐसी बेमिसाल आला तरीन किताब ऐसी शान के साथ नजूल बगैर वही के मुमकिन ही नहीं। यह कुरान करीम के मौज़ा कहरा होने की बुरहान है, और जब ऐसी कभी बुरहान कायम है तो उस बात नबुव्वत के लिए किसी दूसरी निशानी का तलब करना कतन गैर जरूरी है। ऐसी हालत में इस निशानी का नाजल करना, ऐसी हालत में इस निशानी का नाजल करना ना करना अल्लाह ताला की मशीयत पर है, यानी कि अल्लाह ताला की मर्जी है, चाहे करे चाहे ना करे। तो ये अमरे गैब हुआ और इसके लिए इंतजार लाजम है आया कि अल्लाह क्या करता है। लेकिन वो ये गैर जरूरी निशानी जो कुफार ने तलब की है, नाजल फरमाए या ना फरमाए, नबुव्वत साबित हो चुकी है, रसालत का सबूत कायरा मौज़ा से कमाल को पहुंच चुका है। अब मजीद जो इसने वो भी मैं पढ़ देता हूँ, ये इसने और आयत मुबारका सूरह रात यानी कि 13वीं सूरह मुबारका और इसकी आयत 7। और काफिर कहते हैं कि इन पर इनकी तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी।
तुम तो डर सुनाने वाले हो और हर कौम के हाथी हो। अब इसकी तफसीर पढ़ने से पहले मैं एक जिक्र कर दूं, मैंने इसकी तमाम बकवासों का जवाब दे दिया, बल्कि इसने बार बार रिपीट की, मुझे भी बार बार रिपीट करनी पड़ी। एक एक बकवास इसने तकरीबन 10-10 बार की और 10-10 जगह पे मैंने जवाब दिया। उसके बावजूद मुझे ये क्रिश्चियन जो है वो फोन करके या कमेंट्स में लिख देते आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। और भाई इतनी वीडियोज है, देखो ढूंढो। अब मैं हर बंदे को जा के बताऊं कि जी इस वीडियो में मैंने ये जवाब दिया, इस वीडियो में ये जवाब दिया। अब ये तो नहीं मैं कर सकता। अब हर वीडियो के साथ मैंने नेम सेम टाइटल वही रखा, सेम इसका टाइटल है, सिर्फ नंबरिंग डाल दी, तो निकाल लो, देख लो। अच्छा, अब सबका सामने है, यूट्यूब पर, डेली मोशन पर, फेसबुक पर, सबके सामने है। जितने भी मजाब के लोग हैं वो देख रहे। उसके बावजूद ये चुतियापा करने से बाज नहीं आते, ये चूड़े नहीं जी आपने इसका जवाब नहीं दिया। ये तो जवाब ही ना हुआ। अजीब सी वो ऐसी तो गंदी औरतें वो नहीं हरकतें करती जो तुम्हारी हरकतें हैं, चूड़ो। अच्छा, अब मैं इस आयत मुबारका की तफसीर पढ़ रहा हूँ। काफिरों का ये कौल नहायत बेईमानी का कौल था। जितनी आयात नाज़िल हो चुकी थी और मौज़ात दिखाए जा चुके थे, सबको उन्होंने कालादम करार दे दिया। ये इंतहा दर्जे की नाइंसाफी और हक दुश्मनी है जब हुज्जत कायम हो चुके और नाकाबिले इनकार बराहीन पेश कर दिए जाए और ऐसे दलाल से मुद्दा साबित कर दिया जाए जिसके जवाब से मुखालफिन के तमाम अहले इल्म व हुनर आजिज़ व मुतहय्यर रहें और उन्हें लब हलाना और जुबान खुलना मुहाल हो जाए। ऐसे आयात बयानात और बुरहान वाज़ेह व मौज़ात ज़ाहिरा देख कर यह कह देना कि कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, रोजे रोशन में दिन का इनकार कर देने से भी ज्यादा बदतर और बातिलतर है। और हकीकत में यह हक की पहचान कर इससे नादो फरार है। किसी मुद्दा पर जब बुरहान कवी कायम हो जाए फिर इस पर दोबारा दलील कायम करना जरूरी नहीं रहता और ऐसी हालत में तलब दलील अनादो मुकाबला होता है। जब तक के दलील को मजरू ना कर दिया जाए कोई शख्स दूसरी दलील के तलब करने का हक नहीं रखता। और अगर यह सिलसिला कायम कर दिया जाए कि हर शख्स के लिए नई बुरहान कायम की जाए जैसा को वो तलब करे और वही निशानी लाई जाए जो वो मांगे, तो निशानियों का सिलसिला कभी खत्म ना होगा। निशानियों का सिलसिला कभी खत्म ना होगा। चलो आज मैं सीधी सी बात ना करता हूं। मैं आज ही ऐलान करता हूं कि आप जो कहते हो मैं आपकी मानता हूं। आप कहते हो जी यस्सू ने बड़े मौजे किए, यस्सू मुझे अपनी बच्ची दे, मैं निशानी मांगता हूं यस्सू से। जो जितने भी आप लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन सुनते हैं, मेरे जो बयानात हैं वो बड़े बड़े पादरी सुनते हैं। जितने भी मौज़ात करने वाले पादरी बैठे हैं वो यस्सू से ये कहें कि मुझे यानी कि मोहम्मद इब्राहिम कादरी को यस्सू बच्ची दे, मैं यस्सू को फिर मानता हूँ। यस्सू जो है वो अपनी बच्ची दे दे। बच्ची से मुराद ये नहीं कि उसने खुद जनी हो, उससे मुराद ये है कि वो कोई भी क्रिश्चियन लड़की बहुत खूबसूरत अनटच कुंवारी कंचा, वो यस्सू खुद आके मुझे रिश्ता उसका कहे, क्योंकि वो जिंदा है ना, वो जिंदा है, तो वो आके मेरे साथ उसकी शादी करा दे, मान लेते हैं। मौजा भाई हम भी तो मौजा मांग रहे हैं ना। तुम्हारे यस्सू को मानने का बातें चोते हो कि यस्सू ये यस्सू वो। अभी एंड पे मैं यस्सू की लेता हूँ, आज लूंगा, टका के लूंगा। फिर हम इसने अगली आयत मुबारका बयान की, उसको देख लेते हैं। सूरह रात यानी कि 13वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत 27। और काफिर कहते हैं इन पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से क्यों ना उतरी। तुम फरमाओ बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह से उसे देता है जो उसकी तरफ रजू लाए। और मजीद हम आगे चलते हैं। सूरह नाम यानी कि 6ठी सूरह मुबारका है, आयत 37 है। और बोले इन पर कोई निशानी क्यों ना उतरी इनके रब की तरफ से। तुम फरमाओ कि अल्लाह कादिर है कोई निशानी उतारे, लेकिन इनमें बहुत निरे जाहल है। फिर आप मजीद आगे चलते हैं। सूरह नाम यानी कि 6ठी सूरह मुबारका आयत है 57। तुम फरमाओ मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और तुम उसे झुटलाते हो मेरे पास नहीं जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। ये क्या है जिसकी वो जल्दी मचा रहे हैं? ये है कि वो काफिर क्या कह रहे थे कि जिस अजाब से तुम हमें डराते हो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिस अजाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डराते हो उसको जल्दी हम पर नाज़िल कर दो, उसको जल्दी नाज़िल कर दो। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फरमाओ मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं और तुम उसे जुटलाते हो, मेरे पास नहीं है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। कौन सा? यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब। हुक्म नहीं मगर अल्लाह का वो हक फरमाता है, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। फिर आप आगे चलते हैं सूरह 6 आयत 109। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हलफ में पूरी कोशिश है
कि अगर उनके पास कोई निशानी आई तो जरूर उस पर ईमान लाएंगे। तुम फरमा दो कि निशानियां तो अल्लाह के पास है, और तुम्हें क्या खबर कि जब वो आए तो ये ईमान ना लाए, जब वो आए तो ये ईमान ना लाए। ये क्लियर कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब बातें हैं कि क्या कुरान पाक में किसी निशानी का जिक्र नहीं किया, यानी कि किसी मौजे का जिक्र नहीं किया। कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा मौजज़ात हैं, बल्कि हर आयत जो है कुरान पाक की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, हर लफ्ज मौजज़ा है। बस ये है कि बंदा हलाली हो मनवा लेंगे, अगर हरामी है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, जो हरामी हो तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। और ये इनके बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं, ये टीजी खा और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो अपने आपको पता नहीं क्या क्या बकवासें करते रहते हैं, वो बड़ी बातें करेंगे जी, वो निशानी। अब ये जो 7 आयात इसने जो 7 दलाइल दिए, ये किसी क्या है? ये कुफार का मुकालमा दर्ज किया गया कि कुफार जो कहते थे, अब उससे इन्होंने कहा जी ये निशानी नहीं थी, कोई ख्याल नहीं था। अब मैं जब पुराने पाक से साबित करूंगा, इनकी बहनें भी भाग जाएंगी, इनकी माएं भी भाग जाएंगी, और इसमें कुछ मुसलमानों ने की भी भागेगी, इसमें कुछ मुसलमानों की भी भागेगी। वो मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान, हकीकी मुसलमान ने नाम नेहाद मुसलमान, उनकी भी भागेंगी। उसकी वजह क्या है? जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर फजीलत का इनकार करने का जिनका शेवा है, यानी कि ख्वारिज है, वो ख्वारिज मुसलमान नहीं है, नाम नेहाद मुसलमान है, सो काल है, नाम उनका मुसलमानों में है, यानी कि नाम उनका मोहम्मद रियाज भी हो सकता है, मगर है वो खारजी होगा, जिनकी अभी बहन भागने वाली है। उसको हम देखेंगे सूरह कमर, यानी कि 54 सूरह मुबारका है, और आयत है इसकी एक आयत से शुरू करेंगे। बस आई क्यामत और शक हो गया चांद, यानी कि क्यामत की निशानियों में है कि क्यामत करीब आ गई, चांद शक हो गया, चांद 2 टुकड़े हो गया, और अगर देखें कोई निशानी तो मुंह फेरते और कहते हैं ये तो जादू है, चला आता है। अब ये यहां से जो ये 2 आयात है, इसमें क्या जिक्र है? इसमें चांद के 2 टुकड़े होने का जिक्र है। इसकी मैं तफसीर पढ़ देता हूं। इसके नजदीक होने की निशानी जाहिर हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा से 2 पारा होकर शक्ल कमर का जिसका आयत में बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाते बहरा में से है। अहले मक्का ने हजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौजज़ा की दरखास्त की थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद शिक करके दिखाया। चांद के 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा दूसरे से जुदा हो गया, और फरमाया कि गवाह रहो, कुरैश ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू से हमारी नजरबंदी कर दी है। इस पर उन्हीं की जमात के लोगों ने कहा कि अगर ये नजरबंदी है तो बाहर कहीं भी किसी को चांद के 2 हिस्से नजर ना आए होंगे। अब जो काफिले आने वाले हो इनकी जुस्तजू रखो और मुसाफिरों से दरियाफ्त करो। अगर दूसरे मकामात से भी चांद शिक होना देखा गया है तो बेशक मौजज़ा है। चुनांचे सफर से आने वालों से दरियाफ्त किया, उन्होंने बयान किया कि हमने देखा है कि इस रोज चांद के 2 हिस्से हो गए थे। मुशरिकीन को इनकार की गुंजाइश ना रही और वो जहलाना तौर पर जादू ही जादू कहते रहे। साथ ही हदीस कसीरा में इस मौज़ा अज़ीमा का बयान है और खबर इस दर्जा शोहरत को पहुंच गई है कि इसका इनकार करना अक्ल इंसाफ से दुश्मनी और बेदीनी है। यह क्लियर हो गया कि नबी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ा, मैंने सिर्फ एक ही मौज़ा उठाया है, वो सिर्फ इसलिए कि उस दौर के जितने भी कुफार थे उनके सामने ये मौज़ा पेश हुआ। कौन सा? शक्ल कमर का, यानी कि चांद का 2 टुकड़े होने का, और इस मौजे को सबने देखा। अब मैंने कोई ऐसा मौजा नहीं यानी कि वो साबित किया कि वो किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया। कुछ लोगों को उसका पता होता, किसी मरीज को शिफा देती, कुछ लोगों को उसका पता होता, किसी बीमार को शिफा देती, कुछ लोगों को पता होता। यह वो मौजा था जिसके लिए एक पूरी, यानी कि वो अहले मक्का और जितने नजदीक के लोग थे वो वहां पर जमा हुए थे, वहां पर जमा हुआ थे, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। और जितने भी लोग, और इस पर बड़ी तहकीक हुई, उलमाए अहले हक ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो आप अगर ढूंढेंगे मार्केट से, चांद शायद इंटरनेट पर, मैंने तो नहीं देखी, आप चेक करें तो शायद मिल जाए चांद के 2 टुकड़े होने पर। और इस पर बहुत ज्यादा तहकीक हुई और इसका जो यानी कि साबित किया गया है, ये मौज़ात सीरा में से ये चांद के 2 टुकड़े होना, इसके लिए आप अगर सीरत मुस्तफ़ा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब वाली
वो भी देखें तो उसमें भी माशाल्लाह इसका बहुत जिक्र है। तो इसके लिए बड़ी तहकीक हो चुकी है, तो ये साबित हो चुका है कि ये चांद 2 टुकड़े हुआ था। अब कोई उठकर ये साइंस ना लड़ाने शुरू कर दे। जी हिस्ट्री मैंने कहा, हिस्ट्री से भी साबित है, वो किताबें आप पढ़े आपको सारी उसमें तहकीक मिल जाएगी। ये नहीं है कि जो चूड़ा जो जिसकी बाइबल ही फौज किताबों का मजमुआ हम उसकी बकवास मानते फिरे, हम उसकी बकवास मारते फिरे। ये इनकी बड़ी होती है कि जी हम ये तुम लानती लोग हो। अब मैं तुम्हारे यस्सु की औकात जाहिर करने लगा हूं। मैंने आज ये खुली बात की है। आज आखिरी रोजा है चांद, यानी कि आज जुम्मा मुबारक है, तो मैंने ये खुली बात की है कि अगर यस्सु वो जिंदा है तुम्हारे मुताबिक, यस्सु खुद आए किसी अच्छी सी खूबसूरत सी बड़ी कंचा टाइप की बच्ची को लेके आगे मुझे मेरे निकाह में दे, तो मैं यस्सु को मान लूंगा कि वो वाकई जिंदा भी है, वो मौजे भी करता है। वरना ये अभी साबित करता हूं कि यस्सु की औकात क्या है, ये आपकी बाइबल से साबित करूंगा। ऐसे खामखा नहीं कि जी वो फलां नहीं मान रहे, फलां नहीं मान रहे। आपकी बाइबल के जो हकायक है वही बताएंगे कि कुरान पाक से ऐसी आयात उठा के जो कुफार की तरफ मुकालमे है, जो कुफार ने कहा, कुफार के जो मुकालमे हैं उनको तुम लोगों ने निशानी बना ली है कि जी ये है। तो जो हकीकी आयत है वो तुम मानते नहीं हो। जो असबात है, नफी मानना तुम्हारी हक है तुम्हारा, यानी कि तुम कहते हो कि हम नबी वाले हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम हरामी हो। अब आते हैं कि बाइबल को, और इस बाइबल को जो हरामी हो या हलाली हो उसको समझ में आ जाएगी। यूहन्ना बाब 21 और आयत 25। और भी बहुत से काम है जो यस्सु ने किए। हाँ, और भी बहुत से काम है जो यस्सु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बड़ी बात है। यस्सु के मौजूदात इतने हैं कि अगर वो किताबें जुदा जुदा लिखे जाते हैं तो वो किताबें ही दुनिया में ना समाती। वाह, क्या मुबालका। अरे झूठ की, लोग कहते हैं कि झूठ मारा, ये झूठ की गांड मारते हैं, झूठ की वो मार देते हैं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने लफ्ज बोल भी दिया। तो अब ये देखो कि इतनी किताबें वो लिखी जाती कि वो पूरी दुनिया में ही नहीं समाती। और ये दुनिया भी इनकी इतनी सी है ना, वो दुनिया भी इनकी इतनी सी है जितना वो अपना क्या अब मैं इनके लिए लफ्ज कहूं कि इतनी घटिया सोच। फिर अब आप आओ मत्ती की तरफ, मत्ती बाब 12 और इसकी आयत 38 से। इस पर बाज फकीर और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, आए उस्ताद, हमसे एक निशानी देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान इनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। अब अगर यस्सु ने मुर्दे जिंदा किए होते, अंधों को आंखें दी होती, वो कोड़ियों को शिफा दी होती, बदरूओं गिरफ्तार को आजाद किया होता है, तो फरीसी या फकी उनका दिमाग खराब था, उनका दिमाग खराब था। वो आगे उसको अवाम में पूछ रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई निशानी नहीं दूंगा, कोई निशानी नहीं दूंगा। और फिर वो कौन सी फकी और यहूदी जो पत्थरों की पूजा करते आ रहे थे, हैकल में रख कर पत्थर क्या करते थे, हैकल में क्या करते थे, पत्थरों को पूजते थे। बाइबल से साबित है या नहीं? कोई झूठ कोई कह सकता है कि वो हैकल में बुत परस्ती शुरू कर देते थे। अब जो बंदा उनके सामने ये मौजा कर दे कि मुर्दे को जिंदा कर दे और वो साबित हो जाए, तो ये उसको खुदा ना बना लेते। उल्टा क्या हुआ? लूका बाब 22 आयत 62, 63, 64। और वो बाहर जाकर जार जार रोया, और जो आदमी यस्सु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे, और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबुव्वत से बता तुझे किसने मारा। यहां पर भी यस्सु की बहन भाग गई थी। हाँ, यही मैं कह सकता हूं। बात यह है कि जो कहोगे, जो जिस अंदाज में बोलोगे उसी अंदाज में बोलूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करते हो ना, तो जब यस्सु के बारे में जब मैं बात करता हूं तो फिर होश करके सुना करो। अब ये लूका 23 बाब में देखते हैं 8 आयत से। हेरोदिस यस्सु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने कुछ जवाब ना दिया। और सरदार खान और फकी खड़े हुए जोरों शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। और फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और फिर मजीद आगे चलते हैं, मरकस बाब 15 28 आयत।
तब उस मजमून का वो नविश्ता को वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाइबल का खुदा वो भी बदकार, बाइबल का खुदा बदकार, यिर्मयाह बाब 10 आयत 42 वो बदकार, दूसरा खुदा वो भी बदकार। अबे बदकार ही तुम, यस्सु भी बदकार, यस्सु का खुदा भी बदकार, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तन करते और कहते थे कि वाह मुकद्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्टे से कहते थे इसने औरों को बचाया। ये जो जुमला ये जायद है, औरों को बचाया, वो कह नहीं सकते थे। अगर वो ये मान लेते कि इसने मौजूदात किए हैं, वो ये लफ्ज़ ही नहीं कहते, औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। अब वो जो है वो लोग कह रहे हैं कि अब नीचे उतरा, अब उतर के कोई मौजा दिखा। हम ये मौजा नहीं दिखा रहा, इसका मतलब यीशु के पास कोई मौजा होता तो दिखाता। ये बस ये सारे वजह क्या है कि ये किताब जिसकी कोई औकात नहीं है। बाइबल को सबसे पहले अगर आप यीशु के मौजा साबित करना चाहते हो ना, तो पहले बाइबल की हकीकत को साबित करो कि बाइबल वाकई इल्हामी है, खुदा का कलाम है, फिर बातें करो। वरना अब हमारे मुसलमान हैं, वो भी ऐसे शहजादे हैं कि वो मिलते जुलते नामों से धोखा खाते रहते हैं। अब वो ये बाइबल में जो किताबें, ये फौज किताबों की फौज किताबें हैं, उनको वो कभी तौरात कह देते हैं, कभी वो साहिब अंबिया कह देते हैं, कभी ज़बूर कह दिया, कभी अनाजील कह दिया, अंजीलें कह दिया, और हमारे मुसलमान हाथ बांध के खड़े, हाँ जी हम मानते हैं। और कुछ शर्म करो मुसलमानों, खुद ही कोई, मैं मुसलमान उलमा इकराम से भी अक्सर कहता हूँ कि भाई एक बार चेक कर लो, चेक करके फतवा दे दो कि ये जो मौजूदा बाइबल है ये क्या है, ताकि तुम्हारे मुसलमान ही हमारे मुसलमान गुमराह ना हो पाए। वरना होगा क्या, वो एक दिन आएगा तुम देख लोगे कि क्या औकात, क्या पोजीशन होती है। जिस तरह से ये बेगैरतियां कर रहे हैं, मैं अब कहां तक और किस का मुंह तोड़ूंगा, और क्या कर सकते हैं। कुछ उलमा इकराम को भी एहसास करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पूरी तरह सोच समझ कर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है।